Formation of image by the concave lens. The nature of the image formed by the concave lens does not depend upon the distance of the object from the lens. The concave lens give virtual images only. The nature of an image formed by the concave lens can be described as it is always virtual, it is always erect, it is always formed between the optical center and the principal focus on the same side as that of the object. It is always smaller in size than the object. प्रॉब्लम किसी को ये सारे केसेस इसमें डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन आपने ये 6 के 6 केसेस ले लिए। अच्छा, पहले आप 6 केसेस लिख के लेके आए हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। Now these pictures are taken from your book. The image is at 2f, real inverted, the same size of the object when the object is placed at 2f. Object 2f पे image की properties नीचे हैं, object beyond 2f है, image की properties नीचे दी गई हैं। पीछे है तो image between f and 2f होगा, real होगा, inverted होगा। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f है, इमेज बियॉन्ड द 2f होगा। ऑब्जेक्ट जो है आपने प्रिंसिपल फोकस पे रख दिया है, इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड बिकॉज द रेज नेवर मीट। नो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, द इमेज विल बी फॉर्म्ड, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड विल बी ग्रेटर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। रूल्स मैं बता चुका हूँ, ये मत पढ़ा चुका हूँ आपको। नो जी, फिगर आपको नजर आ रही होगी। केस कौन सा जी? 2f से पीछे वाला, ये कह दीजिए दोनों सेम साइज का है। इन द फिगर 12.26 लेट एन ऑब्जेक्ट OP नजर आ रहा, ये आपका ऑब्जेक्ट OP। ऑब्जेक्ट OP इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एट द डिस्टेंस p, डिस्टेंस उसका p है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। A ray PR parallel to the principal axis, this is PR. After refraction will passes through the principal focus. यहाँ पहुंच गए। A ray from the P, that is PC, will pass through the optical center and meets the first ray at the point P prime. अगर हम इसी तरह दूसरे पार्ट्स के लिए रेज लें तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे इसका इमेज नजर आएगा। A ray PR parallel to the principal axis after refraction passes through the principal focus. Another ray PC meets the first ray at the point P prime after passing through the optical center C of the lens. If this process is repeated for the other point, we have repeated this process for the point P. अगर हम दूसरे पॉइंट्स के लिए परफॉर्म करेंगे तो उनका इमेज भी यहाँ पे हमें दिखाई देगा। If this process is repeated for the other points of the object, a real and inverted image O prime P prime is formed at a distance q from the optical center of the lens. प्रॉब्लम किसी को देखिए जी, तो इमेज लोकेशन बाय द लेंस इक्वेशन, what is the size of the image formed in a lens for particular object of the size for a particular distance of the object from the lens, कि क्या साइज होगा इमेज का अगर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर पता हो। what is the nature of the image, whether the image is real, imaginary, erect or inverted. Lens formula is a tool that we use to answer all the above questions. We define the lens formula as follows: the relation between the object and the image distance from the lens in terms of the focal length of the lens. ये पीछे वाला formula that type of formula which establishes the relationship between the focal length, distance of the object and the distance of image is called the lens formula. तो formula आपको पता 1/f is equal to 1/p plus 1/q. Equation 12.24 is valid for both concave and convex lenses. Problem किसी को? However, following sign convention should be followed while using this equation to solve the problem related to lenses. Sign conventions for the lenses: focal length f is positive for a converging lens. Convex lens के लिए positive है, f is negative for the diverging lens. Object distance p is positive if the object is towards the left of the object, मतलब if the object is real, ज़्यादा अल्फाज में, for the real object. P is negative if the object is on the right side of the lens. ज़्यादा अल्फाज में जिस साइड पर अगर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बन जाए, मतलब इमेज वर्चुअल हो, तो उसका जो डिस्टेंस होगा नेगेटिव लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो जाए, ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाए, मतलब इमेज आ जाए, ऑब्जेक्ट काम करे, तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव। Image distance q is positive for the real image and q is negative for the virtual image. Problem किसी को? Now कुछ बातें ये पढ़ लेते हैं. The study of light behavior is called optics.
The branch of optics that focuses on the creation of images is called the geometrical optics because it is based on the relationship between the angle and lines that describe the light rays. With a few rules for geometry, we can explain how images are formed by devices. By devices, the lenses, mirrors, cameras, telescopes and microscopes. ठीक है? Optics include the study of the eye itself because human eye forms an image with a lens. लेकिन मुझे किताब दे दो, मेरे से नहीं ये पढ़ा जा रहा. The thin lens formula assumes the lenses have no thickness. This is a good assumption when the object and the images are far away compared with the other lens. आपने ये फार्मूला प्रूफ किया ना, ये आपने एक थिन लेंस के लिए प्रूफ किया. जिसके लिए ये सारे फार्मूला हम थिन लेंसेज के लिए प्रूफ कर रहे हैं. ठीक है जी, पढ़ तो लिया मैंने अभी, जब आगे वाले पढ़ूंगा फिर मैं. यस, आइए जी आगे बढ़ते हैं. कुछ डिवाइसेस हैं जिनके अंदर लेंसेज यूज हो रहे हैं. स्पेक्टिकल्स हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास है, माइक्रोस्कोप है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, बाइनोकुलर है, कैमरा. नो जी आपकी एग्जांपल है. कहते हैं पर्सन 1.7 मीटर टॉल. कितना? 1.7 मीटर टॉल. सबसे पहले वो निकालने का लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला एक ही है. फिर उसके बाद वो इन मैग्निफिकेशन का दो फार्मूले बताए थे. मेरे टोटल 3 हो जाएंगे. वही फार्मूले आपने हमेशा यूज करना और कोई चैप्टर में फार्मूला ही नहीं है. पावर का रेसिप्रोकल है बस. और एक वो रिफ्रैक्टिव ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी आपको, मतलब मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज होगा. का ए पर्सन 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ कैमरा. ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी आपको जी. डाटा लिखते हैं हम लोग. और P उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो 2.5. कैमरा. द कैमरा यूजेस ए कन्वेक्स लेंस, मतलब लेंस कौन सा? पॉजिटिव होगी. हुज फोकल लेंथ इज 0. द फोकल लेंथ इज 0.05 मीटर. पॉजिटिव लेंगे. फाइंड द इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फिल्म एंड डिटरमाइन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल. देखते हैं. सो वी हैव टू, अगर डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो उसे पता चल जाएगा. क्यू फाइंड करना और तो कुछ नहीं कर, दोबारा पढ़ लें. फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड डिटरमाइन वेदर द इमेज इज रियल और इन्वर्ट. इमेज का साइज नहीं पूछा, हाइट ऑफ द इमेज. तो शुरू करते हैं. सॉल्यूशन जी 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1 डिवाइडेड बाय q. अब बच्चे हमें p भी गिवन है, f भी गिवन है, q निकालना. तो 1/q विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/p. वैल्यूज पुट कर लो. सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास रिजल्ट, लेकिन आंसर पॉजिटिव आ रहा है, देख लो जी. सुन रहे? सो देयरफॉर दिस मींस क्या हुआ, हमारा जो इमेज है, सिंस द इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, सो द इमेज इज रियल एंड इज फॉर्म्ड ऑन द फिल्म. दैट इज द प्रिंसिपल फोकस. चले आगे. एक कॉनकेव लेंस, पक्की बात है फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव हो गया. फोकल लेंथ कितनी थी? 15 सेंटीमीटर. So when we will write the data, I will have to write the focal length negative 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed? हमें P find करना, so that it forms an image at 10 centimeter from the lens. So Q हमें दे दिया minus Q. अच्छा, be placed so that it forms an image at a 10 centimeter from the lens. Also find the magnification of lens. Magnification भी find. इसके साथ मैंने लगाया नेगेटिव लगाना. इमेज बना रहा ना, कॉनकेव लेंस से वर्चुअल इमेज होता है. तो कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव है. प्रॉब्लम किसी को? हम खुद देखेंगे ना, उधर क्या देखते हो? खुद देखो, तुम उधर क्या देखते हो? सो आपने P निकालना.
Because 1 by f is equal to, 1 by p plus 1 by q. तो क्या करना, 1 by p निकालना, p निकालना, हाँ। इसको इधर रहने तो उसको इधर ले जाओ। तो ये किया उन्होंने, दोनों की नेगेटिव वैल्यूज पुट की, ठीक है। अब होगा क्या, 1 by f minus 1 by q is equal to 1 by p। 1 by f नेगेटिव है, -15 आ गया, ये पहले ही माइनस है, नीचे मैं माइनस वाली वैल्यू पुट करूंगा जो कि -10 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस इज 1 by p। आफ्टर टेकिंग दिस एलसीएम आपके पास ये 3 - 2 1 by 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ आपको, ठीक है जी। मैग्निफिकेशन निकालने का ना विकास मुझे पता है, मैग्निफिकेशन के मैंने कितने फॉर्मूले 3 बताए थे। एक हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों ही मुझे पता। एक मैंने ये बताया था हाइट ऑफ द q by b, इमेज का डिस्टेंस ऊपर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नीचे। इमेज का डिस्टेंस क्या, इमेज का -10 और p कितना +30। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है, ठीक है, आप इसको छोड़ दो, तो दिस इज 1 by 3। अब याद रखना, ऐसे ये था मैग्निफिकेशन 1 से छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है। 1 से छोटी, जब मैग्निफिकेशन, इसके 3 केसेस याद रखना। इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, दिस मीन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि साइज है इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, दोनों का साइज सेम है। इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा, इमेज का साइज बढ़ जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, दिस मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट को छोटा कर दिया गया। प्रॉब्लम किसी को, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, उसके बाद मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इज q by p, दैट इज 1 by 3। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि उसके साथ था जो कि नेगेटिव है। वो कह रहे इग्नोर द नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने तो मैग्निफिकेशन के जरिए से ये पता करना कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है छोटा हुआ, तो मैग्निफिकेशन 1 by 3 जो कि लेस देन 1, डिनोमिनेटर बढ़ाना, डिनोमिनेटर बढ़ाना, so therefore इसका मतलब ये 1 से छोटा। So the image is reduced to 1/3 of its size than the object। सारा कुछ पढ़ दिया, पीछे से कुछ छोड़ा तो नहीं है। नहीं कुछ नहीं। अब आ जाए जी, ये पिन होल कैमरा बनाया था जो इन्होंने लिया था हमने, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक वीडियो देखेंगे। The story of the camera started with Ibn al-Haytham, the father of ophthalmology. He was a scientist, mathematician, and a doctor from the golden age of Muslim civilization. He was a keen observer. From his experiments, he explained that light traveled in a straight line, and he proved it by projecting an image to a surface through a small hole in a dark room. He also used his experiments to explain. समझ आया? ये सूरज को ग्रहण लगा था ना, तो उसने क्या किया, अपनी खिड़की का जो कवाड़ जो दरवाजा था उसके अंदर होल बनाया और देखा जो सूरज था उसका इमेज उसको कहाँ पे नजर आया, दीवार, और उल्टा, ठीक है, दीवार पे नजर आया। बात समझ आई नहीं आई? इस तरह उसने कहा अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल रखूँ जो कि लाइट सेंसिटिव हो, जैसे उस पर रोशनी पड़े वो इस चीज के इमेज को अपने अंदर बना ले, ठीक है नहीं? तो उसने इस तरह ये पिनहोल कैमरा जो था इजाद किया था। How the human eye works. और इसी तरह उन्होंने बताया कि इंसानी आंख भी इस तरह काम करती है। Ibn al-Haytham's dark room was later called camera obscura. His work on eyes and images laid the foundation for modern day cameras. This includes both video cameras and still cameras. Let's have a look at your camera to understand some basic concepts on how a camera works. Your camera is a dark room that has a hole in front of it. The hole allows light to come into the dark room. The light enters the hole in a straight line and gets projected on the wall of the dark room. When taking photos, a photographer wants to control the amount of light coming into the camera, and he wants to use a sharp, focused image. This design lacks both. Let's introduce a lens in
our camera design. Lens is mounted or placed in this समझ आई? introduced image इन्होंने क्या of the कहा? camera, and he wants to use a sharp, focused image. समझ आया? आपके पास कंट्रोल कोई नहीं है, आप लाइट को कम और ज्यादा नहीं कर सकते। फोकस का भी कोई आप कहीं किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर सकते, This तो फिर लेंस design लगेगा। lacks both. Let's introduce a lens in our camera design. Lens is mounted or placed in front of the camera hole. As part of the design, a lens manufacturer can have one or a series of lenses to make it work. A lens helps us to control the light entering the camera. It focuses the light on a specific area within the dark room. To capture the image of this light falling on the surface of the camera, we insert a medium that is sensitive to light. In the old days, this used to be film, but most modern day cameras have digital sensors. The light coming in through the lens thus falls on the medium, and we save it. In the digital cameras, the sensitivity of the medium can be adjusted via the ISO settings. Now that we are able to focus light on the medium more accurately, we need to have more control on the light. अभी हमने For that, फोकसिंग कंट्रोल कर ली, अब लाइट का भी कंट्रोल करना है। let's look at how the human eye works. During daytime, when there is bright light around us, the iris muscle of our eye constricts to prevent. अब आप देखें इस आंख के अंदर ये आपको होल नजर आ रहा, ये जो आपकी आंख का कलर्ड पार्ट है जिसको आइरिस कहते हैं, ये या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, होल को छोटा कर देगा, या एक्सपैंड करके होल को बड़ा कर देगा। आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। दिस इज प्यूपिल, दिस आइरिस, दिस इज कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। यहाँ से रोशनी आएगी, ये सामने वाला एक पता है वो शफाफ सी झिल्ली होती है आंख के ऊपर, यहाँ पे वो शफाफ झिल्ली कॉर्निया है। कॉर्निया और इस आइरिस के दरमियान में एक लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, दैट फोकस इज द लाइट ऑन द प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल के आगे एक लेंस होगा, तो देखते हैं। Excessive light from entering the eye. At night time or in low light conditions, the iris expands to allow more light to come in for more visibility. समझ आ गया? ये द आइरिस के जो साइज है वो ऊपर छोटा और नीचे बड़ा हो गया क्योंकि हमें ज्यादा रोशनी चाहिए होती है। सो वी आर कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द पीपल दैट अलाउज द लाइट टू एंटर इन द आई टू मेक द इमेज। व्हेन द लाइट इज मोर, हम थोड़ी लाइट को दाखिल करते हैं, व्हेन द लाइट इज लेस, हम पीपल का साइज बड़ा कर देते हैं ऑटोमेटिकली। Expands to allow more light to come in for more visibility. Let's have a look at how we can control the amount of light coming into the camera. In our design, we need something that can contract and expand like a human eye. An aperture is an opening through which light travels, and in a camera, it needs to be able to contract and expand to allow less or more light to enter. Aperture is installed inside the camera lens. So, not only your image is focused by the lens, but the amount of light is also controlled by the aperture of your camera. You can control the aperture in f-stop using the aperture priority mode in the camera. Let's see how we can stop the light from falling on the medium all the time. You only want the camera to take the photo when you press the button, don't you? A shutter is a device that allows the light to pass for a determined period of time for the purpose of exposing the film or the digital sensor. अभी एक शटर होगा, ये नहीं कि आपने मुसलसल रोशनी डालते रहना, थोड़ी सी देर के लिए रोशनी पड़ेगी, बस खत्म। A shutter is installed inside the camera. It is like a door that stops the light. It only opens when you press the button on your camera to take a photo. Once the camera has finished taking the photo, the shutter closes. You can control the shutter speed in seconds using the shutter priority mode in the camera. As a photographer, you need to view and compose your shot before you take it. Inside the camera is a mirror that is placed in front of the medium. When you press the button to take a photo, the mirror flips
up to allow the light to travel towards the medium. But when the mirror is closed, it bounces the light into a prism, and then light goes out through an opening called a viewfinder. This is how you are able to view the scene in front of you. Yes. Let's summarize and review what we've learned in this tutorial. Your camera has a medium to capture the light. Mediums can be film or digital sensor. The lens of the camera focuses light on the medium. Aperture of the lens controls the amount of light coming in your camera. The shutter opens for a predetermined period of time to allow the light to fall on the medium. And the mirror allows you to see through the viewfinder. How do I take good photos? That is a very common question. Aside from developing an eye for lovely compositions, the secret recipe for good photography is learning the art of aperture, shutter, and the ISO. Watch Mujahid's photography tutorials on aperture, shutter, and ISO to learn more. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा. आगे चलते हैं. ये जी, even simpler than a camera with one lens is a pinhole camera. To make a pinhole camera, a tiny pinhole is made in one side of the box. An inverted real image is formed on the opposite side of the box. Problem is, लेकिन किससे बनेगा? लेंस से. एप्लीकेशन ऑफ द लेंसेज. पहला एप्लीकेशन कैमरे में. लेंसेज की बहुत सारी एप्लीकेशन आपके कोर्स में. पहली कैमरे में अब आपने देखना जी. नाउ वी डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज इन द सम ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज कैमरा, स्लाइड, प्रोजेक्टर, फोटोग्राफ इनलार्जर, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स. कैमरा. A simple camera consists of a light proof box जिसमें लाइट दाखिल नहीं हो सकती, with a converging lens in front and a light sensitive plate or film at the back. ये सामने लेंस लगा हुआ और ये बैक पे आपके एक लाइट सेंसिटिव फिल्म या एक सेंसर लगा हुआ. The lens focuses images to be photographed on the film. लेंस क्या करता है? वो इमेज जिनको हमने फोटोग्राफ करना है उनको फिल्म पे फोकस करता है. In simple lens camera, the distance between lens and film is fixed, which is equal to the focal length of the lens. अगर तो आपका जो सिंपल कैमरा उसमें लेंस और फिल्म का फासला फिक्स रखा जाता है, तो जो आपके इन्फिनिट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके इमेजेस आपके जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ पे जो फिल्म पड़ी है उस पर बन जाएंगे. इन कैमरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f. याद रखिएगा, कैमरे में आपका ऑब्जेक्ट जो है अगर फिक्स्ड कैमरा है, जो आपका सिंपल कैमरा है, वो 2f से आगे होना चाहिए, या ये कहते हैं 4f से आगे होना चाहिए, ताकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस करे किसके ऊपर? फिल्म के ऊपर. प्रॉब्लम किसी को. A real inverted and diminished image is formed in this way as shown in the figure. ये आपका ऑब्जेक्ट खड़ा और उसका इमेज कहाँ बनेगा? फिल्म में, इस लेंस की वजह से. स्लाइड और मूवी प्रोजेक्टर. Formation of images in slide projector. The projector is an instrument for projecting on the screen an enlarged image of a transparent picture from a slide or movie film. The concave mirror reflects light above. यहाँ पे लाइट सोर्स पड़ा हुआ. दिस इज अ लाइट सोर्स जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करके यहाँ भेजेगा. ये दो लेंसेज हैं, ठीक है, कंडेंसिंग लेंसेज इन्हें कहते हैं. ये रेज ऑफ लाइट को कंडेंस करके यहाँ फिल्म पे फोकस करते हैं. किस पे? फिल्म पे फोकस करते हैं. फिल्म के ऊपर आपका इमेज होता है. उस इमेज को क्या किया जाता है? एक लेंस के जरिए से, प्रोजेक्शन लेंस के जरिए से जाके फोकस किया जाता है किसके ऊपर? आपकी स्क्रीन पे. प्रॉब्लम To a pair of condenser lenses. The condenser lenses direct the light through the slide or movie film to a projection lens. The projection lens is moved to and fro until a sharp magnified image is focused. हम भी करते हैं, मूव करते हैं लेंस को घुमा के आगे पीछे प्रोजेक्टर पे, ऐसा ही है ना.
तो ये क्या होता है, कभी इमेज ब्लर्ड हो जाता है, कभी इमेज सही आ जाता है। तो जब वो इमेज बिल्कुल फोकस होता है तो इसका मतलब अब जो इमेज है आपके लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। On the screen, the slide or movie film has to be put upside down and turned left to right to form a real image the right way up on the screen. अब क्या किया, इमेज तो आपका जो बना है, बात सुन रहे हो, स्लाइड जो आपने टेढ़ी डाली हुई है उसका इमेज क्या बना, सीधा बना। अगर आप सीधी डाल देते इमेज टेढ़ा बनता। फिर हम क्या करते हैं, वो प्रिज्म जो कि इन्वर्ट कर देता है इमेज। Otherwise, the image formed on the screen will be inverted, both laterally and vertically. Thank you for taking time to watch this. In the figure 12.2 shows how a slide or movie projector work. The light source is placed at the center of the curvature of the converging or concave mirror. The concave mirror is used to reflect the light back in a fairly parallel rays form. The condenser is made up of two converging lenses that refract the light, so all parts of the slide are illuminated with parallel rays. Whereas where a pen is placed in front of convex lens, कहता है कहाँ पे एक पेन को रखा जाए एक convex lens के सामने, if the image the size of pen, तो कहाँ रखेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज और आपके पेन का साइज इक्वल हो, 2f पे रखेंगे, 2f पे डबल डिस्टेंस, डबल 2 फोकल लेंस के फासले पे रखेंगे। नहीं समझ आया, 2f पे इमेज और साइज दोनों इकट्ठे बनते हैं ना, जहाँ इमेज होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। 6 के 6 केसेस जाके पढ़ो, ये आपका तीसरा केस है। चले आगे। सो क्या, व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस इन डायोप्टर्स, 1/f कैलकुलेट कर लीजिएगा। फोटोग्राफ इन लार्जर, इसका क्या हम, क्या छोटी छोटी पिक्चर्स को बड़ा करके दिखाना। तो क्या, इन केस ऑफ फोटोग्राफ इन लार्जर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस मोर देन f बट लेस देन 2f। ऑब्जेक्ट को रखा जाता है किससे, 2f से, और 2f और f के दरम्यान में रखा जाता है। तो जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, 2f से पीछे बनता है और साइज में बड़ा होता है। आपने केसेस पढ़े हैं ना। तो इन केस ऑफ फोटोग्राफ इन लार्जर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, जब तक 6 केसेस आप सही नहीं करेंगे ये बातें समझ नहीं आएंगी। तो इनके आप बल्कि अब मैं आपको जो काम दे रहा हूँ, आपने 6 के 6 केसेस चारों के, कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इनके 6 के 6 केसेस फॉर द इमेज फॉर्मेशन आपने 5-5 दफा लिखने हैं। उससे मैं आप पे कोई बर्डन नहीं डाल रहा, सिर्फ लिखने से क्या होगा, आपको बात समझ आ जाएगी। इन दिस वे वी गेट अ रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड इमेज एज शोन इन द फिगर, आपको इमेज मिल जाएगा। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफ इन लार्जर इज बेसिकली द सेम एज दैट ऑफ द स्लाइड प्रोजेक्टर। इट यूजेस द कन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस a real magnified and inverted image of the film on the photographic paper. सिंपल माइक्रोस्कोप जी आपका एक जो एक क्या कहते हैं इसको, आपका कोई भी कन्वेक्स लेंस जो है, सिंगल कन्वेक्स लेंस जो है उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप दैट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल कन्वेक्स लेंस। ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए कन्वेक्स लेंस which is used to produce magnified image of the small objects, hence it is also called a simple microscope. The object is placed, कब simple microscope के तौर पर हमारा convex lens काम करेगा, when the object is placed between the optical center and the principal focus of the lens, then the image of the object is enlarged, magnified, erect, ठीक है, and virtual। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़कर अपने कन्वर्जिंग लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरम्यान में रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो मैग्नीफाइड आपको नजर आएगा। सो सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरर टू द लेंस देन द प्रिंसिपल फोकस सच दैट एन अपराइट, इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज इज सीन क्लियरली एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल आई। इसका क्या मतलब, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल आई का क्या मतलब है? बेटे देखें, हमारी आंख जो है ना, अगर नॉर्मल आई जो है अगर उसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के फासले पर रखा जाए, ठीक है, तो आंख उसको देख सकती है। अगर 25 सेंटीमीटर से आगे रख दिया जाए आंख के करीब, अब मेरी आंख नहीं इसको देख सकती। समझ आया? हमारी आंख का नियर पॉइंट, वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर हमारी आंख किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज अपने रेटिना पे बनाती है, वो हमारी आंख का नियर पॉइंट है। नॉर्मल आंख का 25 होता है।
अगर उससे पीछे ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो हमारी आंख उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती, प्रॉब्लम किसी को। फिर क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीफाइंग लेंस दरम्यान में लाएंगे, वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा, 25 सेंटीमीटर, कहां पे, 25 और हम उसे देख लेंगे, क्योंकि अब हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे, उसके इमेज को देख रहे हैं। सो ये मतलब है इसका। नियर पॉइंट क्या होता है, इस बार से मैंने फिर नियर पॉइंट की डेफिनेशन आपको दी है। ए पॉइंट नियर टू द आई, आंख के करीब वो नुक्ता, वो मुकाम, एट विच एन ऑब्जेक्ट इज एक्यूरेटली फोकस्ड, आंख के करीब तरीन वो नुक्ता, वो मुकाम जिस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसका एक क्लियर एंड, जिसे कहते हैं ना बड़ा ही एक्यूरेट इमेज या क्लियर इमेज हमारी आंख के रेटिना पे बने, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। और ए पॉइंट नियर टू द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल टू द नॉर्मल ह्यूमन आई इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट का आंख से फासला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई, आंख से कम से कम फासला फ्रॉम द आई एट विच, जिस पर एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल टू द आई इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आंख से वो कम से कम फासला जिस पर कोई चीज आपकी आंख के ऊपर क्लियरली आपको नजर आए, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। प्रॉब्लम किसी को, फार पॉइंट, ए पॉइंट farthest फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट इज एक्यूरेटली फोकस्ड, आंख से मैक्सिमम फासले पे वो नुक्ता, वो मुकाम जहां से वो चीज आपकी आंख को अपना क्लियर इमेज बना, अगर उससे दूर रख दिया जाए आपकी आंख को चीज नजर नहीं आती, ये कहा गया। ए फार पॉइंट, a point farthest from the eye at which an object is accurately focused on its retina is called its far point, far distance or far distance of distinct vision. The maximum distance from the eye at which an object is clearly visible to the eye is called the far distance of distinct vision. Note, for a normal eye the near point is at 25, least distance of distinct vision is 25 centimeter. For a normal eye the far point is at infinity, कोई डिस्टेंस नहीं है, आपको इसलिए तो चांद नजर आता है। चले आगे, ये आपको दिखा रहे हैं, इस पिक्चर को देखें, अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के फासले पे है तो आपकी आंख को बिल्कुल सही नजर आएगा, अगर उससे उठा के आगे रख दिया जाए तो आपको नजर नहीं आएगा। अब आपने इसको देखना तो क्या करेंगे, हम एक लेंस यहां पर रखेंगे, वो क्या करेगा, वो लेंस क्या करेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसके प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरम्यान में, ये अब उसका वर्चुअल इमेज बनाएगा यहाँ पे, और हमारी आंख उस वर्चुअल इमेज को देखेगी, और उस इमेज का हमारी आंख से फासला कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। बात समझ आई, क्लियर है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, देखें, ऑब्जेक्ट जब हमारी आंख के ऊपर 25 सेंटीमीटर के फासले पे था और हमें नजर आ रहा था, उस वक्त उसने हमारी आंख के ऊपर जो एंगल बनाया था, क्या बनाया था, एंगल बनाया था, वो वाला एंगल। एंड जब ऑब्जेक्ट हमारी आंख के करीब पड़ा हुआ था और उसके इमेज ने हमारी आंख के ऊपर, जब हमने उसको देखा किसके जरिए से, लेंस के जरिए से, और उसके इमेज ने हमारी आंख के ऊपर अब जो एंगल बनाया, दैट इज थीटा प्राइम। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा, क्योंकि इमेज इनलार्ज्ड है। तो याद रखिए, ऑब्जेक्ट, let theta be the angle subtended at the eye by a small object when it is placed at the near point of the eye। कहता है थीटा वो एंगल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने आपकी आंख के नियर पॉइंट पर पड़ा होने की वजह से आपकी आंख के साथ सबटेंड किया। समझ आ रही है, आपकी आंख का जो लेंस है ना, उसके प्रिंसिपल एक्सिस है, वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके हेड के दरम्यान में जो एंगल बन रहा है, क्लियर हुआ। जब आपकी आंख के नियर पॉइंट पे पड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी आंख पे जो एंगल बना रहा है, दैट इज एन एंगल, वो एक आपका एंगल है। फिर दूसरा क्या, इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव नियरर टू द आई, अगर आप ऑब्जेक्ट को आंख के करीब कर दें तो आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा। नियर पॉइंट की डेफिनेशन अप्लाई करो ना, नहीं नजर आएगा। नियर पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे वो मिनिमम फासला था, जिसपे हमें नजर आ रहा था, अगर उससे आगे आ जाए तो वो नजर नहीं आएगा। The object is now moved nearer to the eye as shown in the figure number
12.30 बी, ये बी में आपको दिखा रहे हैं, आंख के करीब ले गए हैं इसको, ये पहले कहीं यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे ले गए। सो व्हाट विल हैपन, द एंगल ऑन द आई विल इंक्रीज। अब जो ऑब्जेक्ट का आंख पे एंगल है वो बढ़ जाएगा, पहले आंख से दूर था एंगल छोटा था, अब जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट आंख के करीब जाएगा उसका एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट क्या कहा, द एंगल ऑन द आई विल इंक्रीज एंड बिकम थीटा प्राइम, बट द आई विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली। In order to see the object clearly, we put a convex lens between the object and the eye, so that the lens make a large virtual image of the object at the near point of the eye, and the image will be visible to the eye. अब आंख उस ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगी, किसको देखेगी, इमेज को देखेगी, जो कहाँ बना, आपकी आंख के नियर पॉइंट पे बना। समझ आ गया? In this way the object appears magnified. अब जरा मैग्नीफाइंग पावर in this case will be, ये याद रखना, एक होती है लीनियर मैग्निफिकेशन जो कि ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज की रेशियो है। हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन है जो साइजेस की रेशियो है। लेकिन याद रखना, द रेशियो बिटवीन द एंगल सबटेंडेड ऑन द आई बाय द इमेज of an object as seen when the object is seen by some lens, some instrument. याद रखो, the ratio of the angle subtended on the eye by the image of an object when the object is seen through a lens to the angle subtended by the object on the eye when the object is seen without a lens. ऑब्जेक्ट को आपने विदाउट ए लेंस देखा, 25 सेंटीमीटर पे आपको नजर आ रहा था, वो वाला एंगल, और जब आपने ऑब्जेक्ट को किससे देखा, लेंस के थ्रू देखा, और जो उसका इमेज अब एंगल बनाएगा आपकी आंख पे, इमेज के एंगल की रेशियो ऑब्जेक्ट के एंगल की रेशियो, ऑब्जेक्ट को देखा फिर इमेज को देखा, तो जो इमेज एंगल बना रहा है और जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है, इन दोनों की रेशियो आपकी एंगुलर मैग्निफिकेशन है। कौन सी मैग्निफिकेशन है, और उसको मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस विल बी थीटा प्राइम बाय थीटा, angle of the image divided by angle of the object. In case, so it can be seen that the magnifying power is given by the relation. आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन अभी हम प्रूव नहीं करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होती है, थीटा प्राइम बाय थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय आर। डी इज द नियर पॉइंट, डी इज द नियर पॉइंट ऑफ योर आई। कहता है वेयर इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दैट यू आर यूजिंग, डी इज द नियर पॉइंट ऑफ द आई। It is clear from this relation that a lens of shorter focal length will have greater power. रेसिप्रोकल में आ रहा ना, तो वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ छोटी होगी उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। मोटा लेंस जो जल्दी कन्वर्ट कर देगा, तो विल हैव ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर, उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी ज्यादा होगी, क्योंकि देखो ना, एफ नीचे आ रहा है, रेसिप्रोकल हो गया मैग्निफिकेशन पावर का, ठीक है। तो जब फोकल लेंथ बटे में है, तो इसका मतलब जब वो बड़ी होगी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, कम होगी। फोकल लेंथ छोटी होगी तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। ये याद रखना आपने। फ्रॉम दिस फार्मूला फोकल लेंथ इज इन द डिनोमिनेटर, सो व्हेन द फोकल लेंथ इज शॉर्टर मैग्निफिकेशन विल बी लार्जर। रिजॉल्विंग पावर, अब ये क्या होती है, देखो मेरी बात सुनो, दूर से एक गाड़ी आ रही है, दूर से गाड़ी आ रही है, मुझे कितनी रोशनियां नजर आएंगी, एक। गाड़ी मेरे करीब आती जा रही है, आस्ता आस्ता उसकी हेडलाइट्स कितने में कन्वर्ट होंगी, दो में। जब मेरे और करीब आ जाएगी तो नजर आ गई तो दो लाइटें थी, समझ आ नहीं आया। शुरू में मुझे एक रोशनी नजर आएगी, मैं फर्क नहीं कर पाऊंगा कि ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, समझ आ नहीं आया। तो बेटा मैग्निफिकेशन ये हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता। हमारा एम चीज को बड़ा ही करना नहीं है, बल्कि उसको रिजॉल्व भी करना है, चीज को बड़ा भी करना और अलग अलग करना भी है। सुनो, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज दिस एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये उसकी एबिलिटी है कि वो आपको फर्क करके दिखाए बिटवीन टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट्स, सोर्सेज, ठीक है जी, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट सोर्सेज इज कॉल्ड इट्स रिजॉल्विंग पावर। कि जुड़ी हुई चीजें थी, अब आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, सेल के अंदर तो जो आपके सेल के पार्ट्स हैं बहुत करीब करीब है,
अब आपने उनको बड़ा भी करके देखना और अलग अलग देखना, तो आपकी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन की पावर भी ज्यादा होनी चाहिए और रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि उनको सेपरेट भी कर सके, उनको अलग अलग भी कर सके। रिजॉल्विंग पावर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टुगेदर, जो बहुत ही क्लोज हो, वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर, वहां पे हम रिजॉल्विंग पावर ज्यादा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी यूज हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप टू सी टाइनी ऑर्गेनिजम्स एंड टेलीस्कोप्स टू व्यू द डिस्टेंट स्टार्स। प्रॉब्लम किसी को, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होती है,